جماعت اسلامی ملتان میں 16 اگست کے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے سرگرم نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کا اس حوالے سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ حکمران ہمارے ساتھ معاہدے پر عمل کریں۔ جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ کہتے ہیں کہ 16 اگست جمعہ کو ملتان میں عوامی مسائل کے حل کے لیے فقید المثال جلسہ ہوگا۔ مرکزی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان جلسہ میں کل اہم اعلانات کریں گے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ بجلی کے بل ادا کرنا عوام کے لیے ممکن نہیں، اور پٹرول کی قیمت پر جو حکومت کے اضافی ٹیکسز ہیں وہ پورے معاشی پہیے کو جام کر رہے ہیں۔ ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لیاقت بلوچ کا کہنا تھا کہ بجلی کے بل ادا کرنا عوام کے بس میں نہیں رہا۔ آئی پی پیز کے 27 پلانٹس ناکارہ ہیں۔ ہمارا مطالبہ تھا آئی پی پیز کے معاہدوں پر نظر ثانی کی جائے تاکہ عوام کو سستی بجلی مل سکے۔ جاگیرداروں اور بڑے لینڈ ہولڈرز، ان پر انکم ٹیکس کا نیٹ میں لانا، اور خاص طور پر جو تجارت، صنعت اور خاص طور پر ایکسپورٹرز پر ناروا بندشیں، قدغنیں اور خوف و ہراس ہے، اس کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ نائب امیر جماعت اسلامی کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے اگلے 40 دن تک عوام کو متحرک رکھنا ہے۔ سستی بجلی، پٹرول ملنا عوام کا حق ہے۔ ہمارے دھرنا شروع کرنے سے دوبارہ پٹرول سستا کیا گیا۔ پٹرول میں 35 روپے مزید کمی کی گنجائش ہے، جبکہ بجلی کی قیمت میں 32 روپے فی یونٹ کمی لائی جا سکتی ہے۔ ہمارے 40 دن تک جلسے اور ریلیاں جاری رہیں گی۔ ہمارا پرامن احتجاج پاکستان کے روشن مستقبل کی علامت بنے گا۔ کیمرہ مین طاہر عباس کے ساتھ جنید انور، روہی، ملتان۔ ملتان کے وکلاء کورٹ فیس میں اضافے کے خلاف سراپا احتجاج۔ وکلاء کا لاہور میں پنجاب اسمبلی کا گھیراؤ کرنے اور دھرنا دینے کا اعلان۔ ڈسٹرکٹ بار کے زیر اہتمام جنرل باڈی اجلاس میں قرارداد منظور کر لی گئی۔ وکلاء نے لاہور میں پنجاب اسمبلی کا گھیراؤ کرنے اور دھرنا دینے کا اعلان کر دیا۔ ملتان ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام جنرل باڈی اجلاس میں احتجاج کا دائرہ وسیع کرنے کا فیصلہ۔ اجلاس میں صدر ڈسٹرکٹ بار عمران خان خاکوانی سمیت دیگر شرکاء نے حکومت کے کورٹ فیس میں اضافے کے اقدام کی سخت مذمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے دور میں انصاف کو مہنگا کر دیا گیا ہے، جس کے برے نتائج سامنے آئیں گے۔ آج کا پاکستانی جو یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید کہیں سے مجھے آخری امید کی طرف کرن کی طرح دیکھ رہا ہے کہ مجھے عدالتوں سے انصاف ملے گا، اب وہ بھی انصاف ملتا نظر نہیں آتا، بلکہ ناممکن ہو گیا ہے وہ اس فنانس ایکٹ کے تحت، کیونکہ سب سے زیادہ لیٹیگیشن جو ہمارے ملک میں ہے وہ غریب آدمی کی ہے۔ پنجاب اسمبلی نے فنانس ایکٹ کے ساتھ ہی، بجٹ کے ساتھ ہی اس ایکٹ کو پاس کروایا، جو کہ ایک ظالمانہ ٹیکس ہے، یہ عام آدمی پر ایک بوجھ ہے۔ جنرل باڈی اجلاس میں سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار سید عارف شاہ نے قرارداد پڑھ کر سنائی، جس میں بتایا گیا کہ کمشنر اور ڈپٹی ایکٹ بل کے خلاف احتجاجی بینرز آویزہ کیے جائیں گے۔ 15 اگست سے روزانہ کی بنیاد پر احتجاج اجلاس اور چوک کچہری تک ریلی کا انعقاد کیا جائے گا۔ 22 اگست کے بعد ڈسٹرکٹ بار ملتان سے وکلاء کا قافلہ لاہور کا رخ کرے گا، جہاں پنجاب اسمبلی کا گھیراؤ اور دھرنا دیا جائے گا۔ پنجاب بار نے پہلے 7 دن کی ڈیڈ لائن دی تھی، وہ بھی گزر چکی، تو 22 بھی آ جائے گی، لیکن ہم نے جو جوش ہے نوجوانوں کا، جو ہمارے بزرگوں کا ولولہ ہے، جو ہمارے بزرگوں کی سوچ ہے، ہم نے اس کو تھمنے نہیں دینا۔ انشاءاللہ تعالی 15 اگست سے روزانہ کی بنیاد پر دھرنا بھی ہوگا، ریلیاں بھی ہوں گی۔ اجلاس میں مرزا عزیز اکبر بیگ، سید ریاض الحسن گیلانی، افتخار قریشی، وسیم ممتاز، اظہر شاہ بخاری سمیت دیگر وکلاء نے بھی شرکت کی۔ اجلاس کے اختتام پر ڈی سی او آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا۔ کیمرہ مین عارف شاہ کے ساتھ مہار عمران نواز، روہی، ملتان۔ ملتان میونسپل کارپوریشن کی غفلت کے باعث اسٹریٹ لائٹس کا فقدان۔ بیشتر شاہراہوں پر اسٹریٹ لائٹس کی عدم دستیابی پر وارداتیں ہونا معمول بن چکا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سلمان ضمیر سے۔ بالکل، ملتان شہر میں رات ہوتے ہی جو ہے وہ اندھیرے جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شہر اولیاء میں انتظامیہ کی جانب سے اسٹریٹ لائٹس تو لگا دی گئی ہیں، مگر انہیں چلانا جو ہے وہ بھول چکی ہے۔ میں بات کروں اگر کچہری روڈ سے گھنٹہ گھر روڈ کی، تو ملتان شہر کا یہ مین روڈ ہے جو کہ ہر وقت جس پر ٹریفک جو ہے وہ گامزن رہتی ہے، اسی روڈ پر ہی جو ہے وہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ لائٹ جو ہے وہ نہیں ہے۔ میرے سر کے اوپر بھی اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے کہ اس وقت ایک اسٹریٹ لائٹ لگی ہوئی ہے، مگر وہ جل نہیں رہی۔
देखने में यही आ रहा है कि मुल्तान शहर के अंदर बेशतर शराहों पर स्ट्रीट लाइट्स जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से लगा दी जाती है, मगर उन्हें रात के टाइम चलाना जो है वो भूल जाती है, और जिसकी वजह से शहर औलिया के बासियों को रोड से गुजरने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर मैं आपको ये भी बताता चलूँ इसके साथ साथ कि इस रोड से घंटाघर रोड तक ट्रैफिक का एक अच्छा हजूम जो है वो पाया जाता है, और मेन शहर के अंदर जो है वो ट्रैफिक का फ्लो जो है वो इसी रोड से गुजरता है, और रात के औकात में जब यहाँ पर लाइट्स नहीं जलती तो यहाँ पर हादसात का होना भी जो है वो मामूल बन चुका है। इसके साथ साथ जो ही अंधेरा होता है तो जो लोग जराइम पेशा अफराद हैं उनकी अमाज गाह भी ये बन जाता है, क्योंकि अंधेरे के अंदर वो लोग नकब लगा कर खड़े होते हैं, और जिसकी वजह से जब शहरी गुजरते हैं तो वो बआसानी उनका हदफ बन जाते हैं, जिसकी वजह से शहरी जो है वो अपनी नकदी से भी हाथ धो बैठते हैं। इंतज़ामिया को सिर्फ यही मतला किया जाता है कि मुल्तान शहर के अंदर जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको फाल किया जाए, क्योंकि हुकूमत की जानिब से लाखों रुपए लगाकर ये स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाती हैं, और उसके बाद जब रात को नहीं जलाई जाती तो उसके बाद मेंटेनेंस के ऊपर जो है वो दोबारा से अखराजात जो हैं वो हुकूमत को बेयर करना पड़ते हैं, जिसकी वजह से हुकूमत के ख़जाने को बड़ा नुकसान पहुंचता है। इल्तिजा यही की जाती है इंतज़ामिया से कि फौरी तौर पर जितनी भी मेन शाहराहें हैं उन पर स्ट्रीट लाइट्स को फाल किया जाए। जी ज़मीर, शुक्रिया सलमान ज़मीर। बात करेंगे डिप्टी कमिश्नर लोधरा की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी जिला कौंसिल की जामे मस्जिद में लगाई गई। खुली कचहरी में शहरियों समेत मुख्तलिफ महकमों के सरबराह की शिरकत। शहरियों ने मसाइल से मुतल्लिक दरख्वास्तें पेश की। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रऊफ मेहर ने दरख्वास्तों पर अहकामात जारी किए। जामे मस्जिद जिला कौंसिल में मस्जिद से मुत्तसिल जगह पर कमरा बनाने की इजाजत दी। शहरी बिला झिझक दफ्तर आएं और मसाइल और तजावीज़ से आगाह करें। सरगोदा में कमिश्नर जहाज़े बवान की ज़ेरे सदारत तारुफी इजलास में ACG अब्दुल मनान, डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट की शिरकत। ACG की जनरल ब्रांच रेवेन्यू और एस्टेब्लिशमेंट बारे तफसीली ब्रीफिंग। नज़्मो ज़ब्त पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। कमिश्नर सरगोदा का कहना था नाअहली और करप्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा काम करने वाले अफसर और एहलकार की हौसला अफजाई की जाएगी। मुल्तान के मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड सेंटर में जश्न आज़ादी की तकरीब का इनेकाद किया गया। नाबीना बच्चों की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड सेंटर में छुट्टियों के बाद पहले रोज यौम आज़ादी मनाया गया, जिसमें नाबीना बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बच्चों ने मिली नगमों पर खूबसूरत अंदाज में परफॉर्म करके सबका दिल जीत लिया। कमिश्नर मुल्तान मरियम खान ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मरियम खान ने नाबीना बच्चों को ब्रेल किताबों का तोहफा दिया। इस मौके पर इनका कहना था कि जमात पंजम तक SOS की तरफ से 276 ब्रेल किताबें फराहम की गई हैं, जबकि इंटर तक की किताबें भी जल्द फराहम कर दी जाएंगी। मुल्क की तरक्की के लिए तालीम अहमियत की हामिल है और बसारत से महरूम तुलबा को तालीम के मौके और वसाइल फराहम करना हम सबका फर्ज है। इनका यहाँ पे ब्रेल बुक्स का बहुत बड़ा इशू था, वो अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने सिविल सोसाइटी के साथ मिल के 5वीं जमात तक इनको तकरीबन 276 ब्रेल बुक्स इनको दे दी हैं, और उम्मीद करते हैं कि इनकी जितनी रिक्वायरमेंट है आगे फ्यूचर में बहुत जल्द वो पूरी की पूरी हम इंशाअल्लाह ताला फुलफिल कर सकें। मैडम की काविशों से हमारे पास यहाँ पर नर्सरी से और 5th क्लास तक की कोई 276 ब्रेल बुक्स आ चुकी हैं, और इसके लिए हम मैडम का बहुत तहे दिल से जो है शुक्रगुजार भी हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी जो है इस तरह से जो हमारी 2nd ईयर तक की बुक्स हैं इंशाअल्लाह वो भी बहुत जल्दी आ जाएंगी। मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड वेलफेयर की चेयरपर्सन सादिया किरमानी का कहना था कि ब्रेल किताबों की अदम दस्तयाबी की वजह से बच्चों को पढ़ने में दुश्वारी का सामना था। कमिश्नर मुल्तान की खुसूसी काविश से ब्रेल किताबें दस्तयाब हो सकी हैं। तकरीब के आखिर में जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अलिशफा आसिफ, मुल्तान। रहीम यार खान में अगीती काश्त कपास की चुनाई का मरहला मुकम्मल हो गया। एग्रीकल्चर ऑफिसर सईद अहमद सोलंकी कहते हैं कि कपास की फी एकड़ पैदावार 10 से 15 मन हासिल हुई। कपास का सरकारी रेट 8,500 रुपये फी मन है। मूसलाधार बारिश से कपास की लेट काश्ता फसल को नुकसान होगा।
रहीम यार खान में कपास की फसल तैयार हो गई। एग्रीकल्चर ऑफिसर सईद अहमद सोलंकी का रोही से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि जिले में 4,63,000 एकड़ पर कपास की फसल काश्त की गई। माह फरवरी और मार्च में काश्त होने वाली कपास की चुनाई मुकम्मल हो गई। जिले में कपास की फी एकड़ पैदावार 10 से 15 मन है। हुकूमत पंजाब ने कपास का सरकारी रेट 8500 रुपए फी मन मुकर्रर किया, जो जिम्मेदारों के लिए अच्छा रेट है। कपास की लेट काश्ता फसल पर सब्ज़तेला, थ्रिप्स और सफेद मक्खी का हमला हो रहा है। महकमा ज़राअत हुकाम के मशवरे से स्प्रे करके कपास की फसल को बीमारियों से महफूज रखा जा सकता है। बारिश ज्यादा होने की सूरत में कपास की पैदावार मुतासिर होगी, लिहाजा कपास के खेत से फौरी निकासियाब के लिए इकदाम करें। हमारे जिला रहीम यार खान के अंदर इस वक्त 4,63,000 एकड़ पर कपास काश्त है। हमारे कुछ दोस्तों ने अर्ली कपास लगी फरवरी और मार्च के महीने में जो काश्त की थी उसकी 12 से 15 मन तक चुनाई मुकम्मल हो गई है। इसके अलावा बाकी भी इंशाल्लाह 15 से 20 मन तक पैदावार आ सकती है। बाकी जो हमारी मौसमी है अप्रैल और जो मई में काश्त है वो इस वक्त इंटरमीडिएट मरहले से गुजर रही है। इस वक्त फुल गुडी का मरहला गुजर रहा है और इस वक्त बड़ी कपास की फसल बड़ी शानदार है। जो सब्ज़तेला है, सफेद मक्खी है या थ्रिप्स है, इसका हमला नजर आ रहा है, लेकिन हम महकमा ज़राअत का हमला लोगों को रहनुमाई करके अगर ETL लेवल से ज्यादा है तो वो हम स्प्रे रिकमेंड कर रहे हैं। एग्रीकल्चर ऑफिसर सईद अहमद सोलंकी का मजीद कहना था कि रवां साल लेट काश्ता कपास की चुनाई नवंबर तक मुकम्मल हो जाएगी। रवां साल कपास जिससे किसान और जिम्मेदार खुशहाल होगा। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। अब बात करेंगे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पंजाब असम्बली के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी को हिलाल इम्तियाज देने की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने सैयद अली हैदर गिलानी को हिलाल इम्तियाज देने की मंजूरी वजीर आजम की एडवाइस पर दी। सैयद अली हैदर गिलानी 2013 के इलेक्शन में अगवा हुए थे और उन्हें अफगानिस्तान से बाजियाब करवाया गया था। आपको अपडेट कर रहे हैं, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पंजाब असम्बली के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी को हिलाल इम्तियाज देने की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने सैयद अली हैदर गिलानी को हिलाल इम्तियाज देने की मंजूरी वजीर आजम की एडवाइस पर दी। सैयद अली हैदर गिलानी 2013 के इलेक्शन में अगवा हुए थे और उन्हें अफगानिस्तान से बाजियाब करवाया गया था।